Good morning, student. Today we'll see what is corrosion. We know that active metals, for example, aluminium, zinc, react rapidly with oxygen and moisture and are converted into their respective compounds, and this process is known as corrosion. मेटल्स जैसे कि एल्युमिनियम है, जिंक है, ये ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ बहुत जल्दी क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। दिस प्रोसेस को हम बोलते हैं करोजन। द करोजन ऑफ आयरन बाय ऑक्सीजन एंड वाटर इज कॉल्ड रस्टिंग। कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन और वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो क्या करता है, मेटल एक कंपाउंड फॉर्म कर देता है। बट वो विच मेटल, एक्टिव मेटल्स। और आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में आता है तब वो क्या करता है, रस्टिंग होता है। मीन्स एक लेयर फॉर्म होता है उसके ऊपर, आयरन ऑक्साइड फॉर्म होता है रेड कलर का। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ करोजन एंड हाउ टू प्रिवेंट इट। One activity is given. This activity should be carried out in summer or winter but not during the rainy season. Take 3 test tube and label them A, B and C respectively. Put 3-4 all pins in each test tube. Add enough water in test tube A so that pins are submerged. Moisten a piece of cotton and put it in the lowest part of the test tube B. Leave all pin in the test tube C untouched. What you have to do, you have to take 3 test tube and label it as A, B and C. Then you have to add 3-4 all pin in each test tube. You put 3-4 all pin in each test tube A, B and C. Then add some water in A so that the all pins put in the test tube get submerged in it. Moisten a piece of cotton. Then a moistened piece of cotton ball you have to put in test tube B, and in test tube C only all pins are placed. Now make the test tube airtight by placing balloon on their mouth. Put the test tube in a test tube stand and place them in a hot place for 3-4 hours. Observe after this time. Remember that rates of reactions are slower in cold weather. Then you have to cover the test tube with balloon and put the test tube stand in hot place or in sunlight for 3 to 4 hours. Then what will happen? Presence of oxygen and moisture is necessary for rusting of iron. We know that we have already discussed that moisture and oxygen both are necessary for rusting of iron, and all pins are made up of iron. Presence of oxygen and moisture is necessary for rusting of iron, but other factors such as presence of salt and acid also affect rusting. Their presence increases the rate of rusting, and this is why iron rusts faster in areas close to seas and oceans. समुद्र के किनारे या जो आयरन का रस्टिंग है वो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, हवा में साल्ट ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। सॉल्ट और एसिड यदि लोहे के संपर्क में आता है तब भी लोहा क्या होता है, रस्ट होता है, उसके ऊपर जंग चढ़ जाता है। Nature of metal also affect the rate of corrosion. Most now out of these 3 alpines, what will happen? All the 3 alpines, one is submerged in water, another is moist cotton is there, and in third one only dry or test tube, and all pins are put. तो सी में तो कुछ भी नहीं होगा। सी में ऑल पिन वैसे के वैसे ही रहेंगे, क्योंकि वो क्या हो गए हैं, ड्राई इसमें आपने उसको रखा है। सेकेंड इसमें क्या हो गया, मॉइस्चर इज ऑल्सो देयर एंड एयर इज ऑल्सो देयर, देन चांसेस ऑफ रस्टिंग greater as compared to A and C.
and in A what happen? Only water is there. सबसे ज़्यादा चेंजेस आपको बी में देखने को मिलेंगे, ए में कम है और सी में तो कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सी में तो एयर के कांटेक्ट में आई नहीं है, ड्राई टेस्ट ट्यूब इज़ देयर, बट मॉइस्ट कॉटन मतलब मॉइस्चर और देयर moisture and air both present in test tube B. Null pins come in contact with moisture and air, then it get rust. उसको जंग चढ़ जाएगा। 4-5 आवर्स आप उसको हॉट वेदर में रखोगे तो पानी में भी रस्टिंग हो सकता है, बट चांसेस एज कंपेयर टू बी इज लेस। नेचर ऑफ मेटल ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ करोजन। Most corrosion prevent metal. Try to prevent air and moisture from coming in contact with the metal. The process of applying a protective layer, usually paint or grease, on iron surface to prevent contact with atmosphere is known as barrier protection. आपने देखा होगा कि लोहे की चीज़ों के ऊपर ना एक क्या करते हैं, पेंट या ग्रीजिंग होता है। ये क्यों करते हैं? ताकि वो लोहा डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए एटमॉस्फेयर के, और इसी को बोला जाता है बैरियर प्रोटेक्शन। आपका जो पेंट या ग्रीज है वो एक बैरियर का काम करता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ यूज टू कोट द सरफेस ऑफ आयरन विथ मेटल। कभी कभी लोहे की चीज़ों के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, दूसरे मेटल का लेयर कोट किया जाता है। जैसे टीन है, निकेल है, क्रोमियम है, तो क्या हो जाएगा, आयरन आपके एटमॉस्फेयर पे कांटेक्ट में नहीं आएगा और रस्टिंग उसका नहीं होगा। That is barrier protection. Then electroplating. These are the two methods you can prevent rusting of iron or a metal. Now next activity is given. Make a list of iron object in your home and school, and note which of them are coated with a paint and which are coated with grease. List the basis of selection for any one of the two barrier. आप आपके घर में जितने भी आयरन के यूटेंसिल्स है, ऑब्जेक्ट्स है, उसके इसका लिस्ट बनाओगे और उसको आप कोट करोगे पेंट से या ग्रीस से, ताकि उसके ऊपर जंग ना चढ़े। लिस्ट द बेसिस ऑफ सिलेक्शन फॉर एनी वन ऑफ द टू बैरियर्स। आप उसमें से क्या करोगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो घर में पॉसिबल नहीं है, तो आप उसके ऊपर पेंट ही कर दोगे। Corrosion of metal can also be prevented by using a more reactive metal. This process is known as sacrificial protection. आप दूसरी तरह से भी आपके मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप उसके ऊपर मोर रिएक्टिव मेटल का क्या करोगे, कोटिंग करोगे, और वो जो मेटल है उस मेटल को डेफिनेटली वो तो ख़त्म हो जाएगा व्हेन कम इन कांटेक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर, इसीलिए उसको नाम दिया है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। You might have heard of galvanized iron when the iron object is coated with a layer of zinc metal. Zinc, being more reactive than iron, react more readily with oxygen, and a thick layer of zinc oxide is formed which prevent the rusting of iron. Sacrificial protection में आप जिंक का नाम लिख सकते हो, क्योंकि जिंक का कोटिंग आयरन ऑब्जेक्ट पे होता है और वो एक थिक लेयर फॉर्म करता है जिंक ऑक्साइड का, और आपका जो आयरन ऑब्जेक्ट है वो रस्टिंग से बच जाता है। Galvanization of iron, that is coating of zinc metal. Some metals are protected by applying corrosion resistant solution. In this process, basic solutions of chromate or phosphate are used as corrosion resistant solution. Chromate or phosphate are used as corrosion resistant solution. Sometimes iron is mixed with other metal to form alloy, and these do not rust at all or rust rarely. आयरन को क्या करते हैं, किसी दूसरे मेटल के साथ मिक्स करके अलॉय फॉर्म करते हैं और फिर वो उसका रस्टिंग नहीं होता है। इन दिस वे वी कैन प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ मेटल। Chemical principles of rusting of iron. The process of corrosion is actually an electrochemical process. When metal like iron are placed in air and humid condition, then negative
negatively and positively charged region develop on its surface, because of which it start behaving like an electrochemical cell. What is the principle behind rusting that we are studying? The process of corrosion, ये क्या है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। कैसे? तो आयरन जो है जब हम उसको बाहर रख देते हैं और वो हवा और ह्यूमिड कंडीशन यानी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो वो कैसे बिहेव करने लगता है? नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज रीजन उसमें फॉर्म हो जाते हैं उसकी सरफेस पे, और वो एक सेल की तरह बिहेव करने लगता है। सरफेस ऑफ द आयरन develop negatively and positively charged regions and behave like an electrochemical cell. केमिकल रिएक्शन इन रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे हो रहा है? एक एनोड की तरह बिहेव करता है और कुछ पोर्शन जो है अपना कैथोड की तरह बिहेव करने लगता है। तो जहाँ पे कंसंट्रेशन हाई रहेगा ऑक्सीजन का, वो वाला सरफेस जो है कैथोड के जैसा बिहेव करेगा। वहाँ पे रिएक्शन कैसी होगी? H2O प्लस हाफ O2 ट्वाइस OH नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल ये आपका कैथोड हो जाएगा। और यहाँ पे आयरन व्हेन कम्स इन कांटेक्ट, लो कंसंट्रेशन ऑफ O2 रहेगा जहाँ पे, वहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आयरन जो मेटल जो है इट लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज एनोड, और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन मूव होंगे और आपका जो आयरन मेटल है स्टार्ट रस्टिंग। रिएक्शन कैसे हो रहा है? आपका जो रस्ट है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड H2O FeOH/2 वाटर में डिसॉल्व होके क्या फॉर्म कर रहा है? FeOH/2। एनोड Fe मूव्स इनटू द सॉल्यूशन एज Fe2 पॉजिटिव। आपका जो आयरन है वो क्या हो रहा है? मूव हो रहा है सॉल्यूशन में, मीन्स व्हेन कम इन कांटेक्ट विथ वाटर। ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आते ही मेटल Fe2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और Fe2 पॉजिटिव हो रहा है विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड and they form, these electrons are taken up water molecule to form OH negative। और ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है आयरन मेटल से, वो वाटर मॉलिक्यूल उसको ले जाएंगे और कन्वर्ट करेंगे 4OH नेगेटिव आयंस में, दैट इज कैथोड टर्मिनल हो जाएगा वो। मीन्स Fe2 पॉजिटिव आयन फॉर्म ऑन एनोड रिएक्ट विद OH नेगेटिव टू फॉर्म FeOH/2। दिस iron hydroxide react with oxygen in the atmosphere in presence of moisture to give hydrated iron oxide। और ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को ही हम क्या बोलते हैं? रस्ट Fe2O3H2O। कैसे फॉर्म हुआ? ये आयरन मेटल ने पहले अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या मिला? 4OH नेगेटिव आयंस। अब ये 4OH नेगेटिव आयंस जो है ये क्या करते हैं? आयरन के साथ रिएक्शन करेंगे, FeOH/2 फॉर्म करेंगे। अब ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड जो है ये फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करेगा आपका रस्ट, दैट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। इसी को हम क्या बोलते हैं? रस्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज अलॉयज। Alloying is a popular method of improving the properties of metal. A homogeneous mixture in which at least one of the primary component is a metal is called an alloy. मेटल की प्रॉपर्टीज इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं? अलॉइंग होता है। Improving the properties of metal, and it is a homogeneous mixture, not heterogeneous. It is a homogeneous mixture in which at least one of the primary component is a metal. इसमें एक मेटल रहता है। एंड अलॉयज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। अलॉय कैसे रहते हैं? सॉलिड रहते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव बीन मेकिंग एंड यूजिंग अलॉयज इन प्री हिस्टोरिक टाइम। अलॉइंग इज डन टू इंक्रीज हार्डनेस, इम्प्रूव क्वालिटी और डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट।
मेटल की प्रॉपर्टी जैसे कि उसका हार्डनेस है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है या उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करना है, तो मेटल को मिक्स करके अलॉय फॉर्म होता है। अलॉयज कैन बी इजीली कास्ट और मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप। अलॉय का और एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि इजीली क्या हो जाते हैं, मोल्डेड होते हैं डिफरेंट शेप में। कास्टिंग इनका बहुत जल्दी होता है। और ये अलॉयज क्या है, मेटल की प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए बनाए जाते हैं। अलॉय इज प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग वन ऑफ द मेटल एंड देन डिजॉल्विंग अदर मेटल और नॉन मेटल इन इट इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन। और एक चीज़ है कि अलॉय में मेटल या नॉन मेटल इन दोनों का प्रपोर्शन कैसे रहता है, फिक्स रहता है, डेफिनेट रहता है। पहले मेटल को वो क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, फिर उसमें दूसरा मेटल या नॉन मेटल को उसमें मिक्स किया जाता है। द मिक्सचर इज़ देन कूल्ड एट रूम टेम्परेचर टू गेट अलॉय। और उस मिक्सचर को फिर जो लिक्विड फॉर्म में है उसको क्या करते हैं, अलाउ टू कूल, और फिर उसको ठंडा होने देते हैं। वाइल मेकिंग अलॉयज मेटल आर चोजन केयरफुली सो दैट वी कैन गेट डिजायर्ड प्रॉपर्टीज इन रिजल्टिंग अलॉय। जब भी हम अलॉय बनाते हैं तब मेटल को बहुत केयरफुली चूज़ करना है ताकि हमें जो प्रॉपर्टीज़ चाहिए अलॉय में वो हमें मिल सके। आयरन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज मेटल, but we can't use it in pure form because iron is very relatively soft. आयरन मेटल क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बट हम प्योर आयरन को यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो प्योर आयरन जो है हमेशा क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। बट इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन इज मिक्स इन इट, इट बिकम हार्ड। स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन। हम सब ने देखा है हमारे घर में स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज़ किए जाते हैं, ये एक अलॉय है आयरन और कार्बन का। कार्बन जब आप इसमें मिक्स करोगे आयरन में तो वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। एग्जाम्पल, स्टेनलेस स्टील इज अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। While where nickel and chromium are also added with carbon, chromium prevent iron from rusting, thus increasing its usefulness. इस तरह से आयरन में कभी क्रोमियम या निकेल को भी ऐड किया जाता है जो कि आयरन को जंग चढ़ने से क्या करते हैं, बचाते हैं। Some useful alloys are given in the table. ब्रास, ब्रॉन्ज, ब्रास यानी पीतल, हमारे घर में पीतल के बर्तन भी होते हैं जिसमें कॉपर और जिंक होता है। देन ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, मैग्नेलियम, बेल मेटल, गन मेटल, सोल्डर, ड्यूटेरियम, स्टेनलेस स्टील, अल्निको, एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट एंड आयरन। अल्निको से तो आसानी से उसके कंपोजिशन का पता चल जाता है, स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम, निकेल, कार्बन एंड आयरन। And their uses are also given. You read the table. Now one activity is given to you. Make a list of all objects made of metal that are used in your school at home. Note which of the object is made of pure metal and which is made of alloy. What could be the reason for using pure metal or alloy while making a particular object? आपके घर में और स्कूल में कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो अलॉय से या मेटल से बने हुए हैं, आप उसका लिस्ट बनाओगे। और जहाँ पे प्योर मेटल या अलॉय यूज़ किया है तो ऐसे क्यों किया गया है उसका रीज़न भी आपको देना है। छत्तीसगढ़ इज़ अ प्राइमरी साइट फॉर आयरन ओर एंड हैज़ मेनी स्टील प्रोडक्शन प्लांट। छत्तीसगढ़ हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वर्किंग विद आयरन एंड डिफरेंट एरियाज फॉलो डिफरेंट traditions of iron craftsmanship. Our ancestors not only discovered technique of iron extraction but also prepared many different alloys by mixing iron with other metals. छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मात्रा में आयरन क्या है, मिलता है, आयरन ओर्स मिलते हैं। ऑल्सो हैज़ मेनी स्टील प्रोडक्शन प्लांट, और हमारे यहाँ एशिया का सबसे नंबर 1 जो भिलाई स्टील प्लांट है जहाँ स्टील प्रोड्यूस होता है आयरन से। छत्तीसगढ़ हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ वर्किंग विद आयरन। बहुत पुराने समय से छत्तीसगढ़ में आयरन का यूज़ हो रहा है। और आयरन का वो जो लोहार बोलते हैं, क्राफ्टमैनशिप, डिफरेंट ट्रेडिशंस ऑफ आयरन क्राफ्टमैनशिप्स। आवर एंसेस्टर्स नॉट ओनली डिस्कवर टेक्निक, हमारे पूर्वजों ने सिर्फ
आयरन एक्सट्रैक्शन का टेक्निक ही नहीं ढूंढ के निकाला, उससे और ज़्यादा अलॉयज़ बनाना भी हमको सिखाया, दैट इज़ मिक्सिंग ऑफ आयरन विथ अदर मेटल. Then how will the rate of corrosion be affected in water and has a high concentration of salt? That has a high concentration of salt. Rate of corrosion definitely increases if there is high concentration of salt in water. एसिड और साल्ट के साथ आयरन जल्दी रिएक्ट होता है और उसके ऊपर उसका करोजन जल्दी होता है. वाई डू वी मेक अलॉयज? आंसर इज ऑलरेडी टिक मार्क. Here is your answer. Alloying is a popular method. First point and second point, alloying is done to increase. This is your answer number 2. 2 points are there. First point and this is your second point. Write 2 points in your copy. Answer of question number 2. What is galvanization? Coating of another metal, that is galvanization. This is answer number 3. Galvanized iron, where iron object is coated with thick and more reactive, prevent from rusting. Answer number 3. In this way I have tick mark answers of all the 3 questions. One I have already dictated. You write answers in your chemistry copy. Thank you.